This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of design analysis of algorithms, we have to go for part 3 of amortage analysis. To compute amortage analysis, there are three methods. First one is the aggregate method, which we have studied in part 1. Second one is the accounting method, which we have studied in part 2. And in today's class, that is part 3 of amortage analysis, we have to go for potential method. So how does we can compute amortage analysis by using potential method? So here potential method is same as accounting method. Here there is a concept of prepaid. So what we have to do, we have to assign some amortized cost to the operations, and if our assigned cost is overcharged, then that overcharge will be converted to the prepaid, and then that prepaid can be used later. Particularly it is different from accounting method also. And how it is different? In accounting method, whatever prepaid was there, that prepaid was called as credit, but in case of potential method, that prepaid is called as potential. Whenever we are going for computation of amortized cost by using potential method, what we have to do, amortized cost for any particular ith operation will be computed by actual cost for that particular operation plus the potential change, and this particular equation will give just the amortized cost. So here you can see CI dash is the amortized cost for ith operation. CI is the actual cost for that particular operation, and in order to perform that particular operation, whatever will be the data structure changes will be there. That data structure changes will be denoted by potential change, and here potential change is given as phi of di minus phi of di minus of 1. And now in today's class, what we have to do, we have to understand how to compute amortized cost for example 2, and here example 2 is incrementing binary counter or a binary number. तो बाइनरी काउंटर या बाइनरी नंबर के लिए पोटेंशियल मेथड यूज करते हुए एमोर्टाइज एनालिसिस कैसे परफॉर्म करेंगे, दैट वी हैव टू स्टडी. तो नाउ वी विल स्टडी एग्जांपल 2 incrementing binary numbers, and for this particular example we will study how to compute amortized cost by using potential method. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंक्रीमेंटिंग बाइनरी नंबर्स यानी क्या. तो इंक्रीमेंटिंग बाइनरी नंबर या इस चीज को इंक्रीमेंटिंग बाइनरी काउंटर भी कहा जाता है. So what will be given to us, one counter or one number will be given to us, and that number will be represented in the form of binary, and then we have to gradually goes on increasing that particular number. तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काउंटर है 0, तो 0 को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे हो जाएगा 2. तो ग्रेजुअली वी हैव टू डू द इंक्रीमेंटेशन. तो ये पर्टिकुलर इंक्रीमेंटेशन के लिए जो लॉजिक लगाया है, दैट लॉजिक इज गिवन बाय इंक्रीमेंट ए. तो इंक्रीमेंट ये में क्या करते हैं, जो कोई भी हमारा काउंटर रहेगा उस काउंटर को सबसे पहले हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लेंगे. तो जैसे आप देख सकते हैं 0 को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया, दैट इज 0 0 0. यहाँ पे हम 3 बिट काउंटर कंसिडर कर रहे हैं. तो जब कभी भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब हम लगाएंगे, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते वक्त हम क्या करना है कि हमें लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करना है. तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड से चेक करते वक्त हम देखेंगे कि हमें फर्स्ट 0 बिट कब मिल रहा है. एज सुन एज वी विल गेट द फर्स्ट 0 बिट, उस 0 को हम 1 कर लेंगे. तो लॉजिक ये है कि जो कोई भी हमारा काउंटर रहेगा उस पर्टिकुलर काउंटर को बाइनरी में लिख लेंगे. तो इनिशियलाइज करेंगे हम इसको 0 0 0 के साथ. अब 0 0 0 को हमें इंक्रीमेंट करते जाना है. तो लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे और हमें चेक करना है क्या हमें फर्स्ट 0 मिल रहा है क्या. तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से चेक करते तो पहला 0 हमको मिल गया. तो जैसे ही हमको पहला 0 मिल जाएगा, पहले 0 को लिख लेंगे हम डायरेक्टली 1. तो 1 0 विल बी रिप्रेजेंटेड एज 1. तो ऑटोमेटिकली इसका इंक्रीमेंटेशन हो जाएगा. बट जरूरी नहीं है कि पहला लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको हमेशा 0 मिलेगा. कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट 0 मिलने के पहले आपको काफी सारे 1 मिलेंगे, और काफी सारे 1 मिल रहे हैं, तब क्या करेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 के लिए, तो 3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, 0 1 1. तो आप लेफ्ट हैंड साइड से चेक करो. लेफ्ट हैंड साइड से चेक करने के बाद क्या मिल रहा है आपको 1. तो जैसे ही आपको 1 मिल रहा है तो 1 को आप 0 लिखो और फिर नेक्स्ट बिट पे जाओ. फिर से अगर आपको 1 मिला तो फिर से उसको 0 लिखो, नेक्स्ट बिट पे जाओ. और जब आपको फर्स्ट 0 मिल गया तो फर्स्ट 0 को आपको 1 लिखना है. तो लॉजिक क्या है, इंक्रीमेंटिंग बाइनरी नंबर का लॉजिक काफी सिंपल है. कोई भी बाइनरी कोई भी अगर काउंटर आपको दिया हुआ रहेगा तो उस काउंटर को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हम लिख लेंगे,
और लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से चेक करते वक्त हमारा एम ये है कि हमें पहला जीरो मिलना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि पहला जीरो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, उस जीरो के पहले अगर आपको वन मिल रहे तो हर वन को आपको जीरो लिखना है और फिर नेक्स्ट बिट पे जाना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से देखने के बाद अगर आपको वन मिला तो वन को आपको जीरो लिखना है, नेक्स्ट बिट पे जाना है। फिर से वन मिला तो वन को जीरो लिखना है, नेक्स्ट बिट पे जाना है। ऐसा चलते रहेगा कब तक, जब तक कि आपको फर्स्ट जीरो नहीं मिलता। और जैसे ही पहला जीरो मिल जाएगा, फर्स्ट जीरो को आपको वन लिख देना है। गेटिंग इट? तो दिस इज व्हाट द लॉजिक ऑफ इंक्रीमेंटिंग बाइनरी नंबर। एंड नाउ we have to go for amortize analysis of this particular incrementing binary number। तो जब कभी भी हम amortize analysis कैलकुलेट करते हैं तो amortize analysis कंप्यूट करते वक्त सबसे पहला ये होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हम amortize कॉस्ट असाइन करें, और amortize कॉस्ट असाइन करने के बाद फिर पोटेंशियल फंक्शन को हम डिफाइन करें। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, द पोटेंशियल ऑफ द काउंटर ऑफ द ith increment operation to be bi the number of ones in the counter after ith operation। तो अगर हमारे पास कोई बाइनरी काउंटर अगर है, तो कोई बाइनरी काउंटर को अगर हमने लिखा होगा तो डेफिनेटली उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ बिट्स ऐसे जिनकी वैल्यू वन है, तो जितने बिट्स एज वन होंगे दैट पर्टिकुलर काउंट विल बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइनरी काउंटर। तो जनरली जब हम इस तरीके से बाइनरी नंबर के लिए पोटेंशियल फंक्शन को अगर हमने डिफाइन करके रखे तो इनिशियली काउंटर का वैल्यू जीरो रहेगा, और इनिशियली काउंटर का वैल्यू अगर जीरो रहेगा तो सारे के सारे बिट जीरो रहेंगे। तो डी जीरो स्टेट यानी इनिशियल स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो फॉर अ बाइनरी नंबर इन इनिशियल स्टेट हियर आवर बाइनरी काउंटर पोटेंशियल फंक्शन विल बी जीरो। बट ग्रेजुअली अगर हम जीरो इटरेशन से आगे अगर जाएंगे तो हर इटरेशन में आपके नंबर ऑफ वंस बढ़ते जाएंगे। तो डी जीरो स्टेट छोड़ के अगर बाकी किसी भी स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो कभी भी हमें उस बाइनरी काउंटर में नंबर ऑफ वन जीरो से ज्यादा ही मिलेंगे। एंड दैट्स व्हाई फाइव ऑफ डी जीरो विल बी ऑलवेज जीरो एंड फाइव ऑफ डी आई फॉर ऑल रिमेनिंग स्टेट्स इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो जनरली अभी हम एक बाइनरी काउंटर को इंक्रीमेंटेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं, और बाइनरी काउंटर को इंक्रीमेंटेशन के मैकेनिज्म के बाद उसके लिए एक अमोर्टाइज कॉस्ट असाइन करते हैं, और अमोर्टाइज कॉस्ट असाइन करने के बाद अमोर्टाइज कॉस्ट और आपका पोटेंशियल फंक्शन कैसे वर्क करता है एंड हाउ अमोर्टाइज कॉस्ट इज डिफरेंट देन दैट ऑफ योर एक्चुअल कॉस्ट, ये सारा मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हियर वी हैव अ काउंटर। तो इनिशियली काउंटर का वैल्यू क्या है, जीरो, और जब जीरो रहेगा तो जीरो को 3 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे हम जीरो जीरो जीरो। अब जीरो 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 के लिए एक्चुअल कॉस्ट जो रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा। अब पहले देख लेते हैं कि इसका फाई ऑफ डी आई क्या रहेगा, और फिर हम समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, और फाइनली समझ लेते हैं कि अमोर्टाइज कॉस्ट क्या रहेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जितने भी हमारे बाइनरी काउंटर्स है, बाइनरी काउंटर्स को हम ग्रेजुअली अगर बढ़ाते जाएंगे तो ग्रेजुअली बढ़ाने के बाद उसका 3 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा ये समझ लेते हैं। तो इनिशियली इट विल बी जीरो जीरो जीरो। अब जीरो 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 को अगर बढ़ाएंगे तो नाउ इट विल बिकम जीरो जीरो वन, देन इट विल बिकम जीरो वन जीरो, एंड देन इट विल बिकम जीरो वन वन। गेटिंग इट? तो इस तरीके से हमने बाइनरी काउंटर को एक एक से बढ़ाया। अब बाइनरी काउंटर को एक एक से बढ़ाने के बाद अगर हम एक्चुअल कॉस्ट कंप्यूटेशन की अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट के लिए हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि जब हम किसी बाइनरी काउंटर को एक से बढ़ाते हैं तो बाइनरी काउंटर को एक से बढ़ाने के बाद, बढ़ाने के पहले और बढ़ाने के बाद दो अलग अलग स्टेट्स रहेंगे। तो दोनों स्टेट में ऐसे कितने नंबर ऑफ बिट्स है जो डिफर हो रहे हैं, दैट वी हैव टू चेक। और जितने नंबर ऑफ बिट्स हमारे डिफर होंगे दैट पर्टिकुलर वैल्यू और दैट पर्टिकुलर नंबर विल रिप्रेजेंट द एक्चुअल कॉस्ट। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो 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 ये हमारा पहला बाइनरी काउंटर है, और उसको एक से अगर हमने बढ़ा दिया तो नाउ इट विल बिकम जीरो जीरो वन। अभी आप ये दो स्टेट में देखो, यहाँ पे कितने बिट्स ऐसे हैं जो डिफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कितना बिट डिफर हो रहा है, सिंगल बिट डिफर होगा। क्यों? क्योंकि हमने जीरो को फ्लिप किया वन, एंड दैट्स व्हाई हियर एक्चुअल कॉस्ट इज वन। गेटिंग इट? उसके बाद जीरो जीरो वन को फिर से अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड से चेक करते वक्त अगर वन होगा तो वन को जीरो लिख देंगे और नेक्स्ट बिट पे जाएंगे। फिर क्या है जीरो,
पहला जीरो हमको मिल गया तो फर्स्ट जीरो को हम क्या लिख देंगे 1, एंड दैट्स वाई 001 का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 001 का रिप्रेजेंटेशन जो होगा दैट विल बिकम 010। अब हमें अगर एक्चुअल कॉस्ट कंप्यूटेशन के लिए जाना है तो एक्चुअल कॉस्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा, यहाँ था 1 और यहाँ मिल गया 10, तो आपके कितने बिट्स ऐसे हुए जो डिफर हुए, तो 1 को 0 किया दिस इज द फर्स्ट फ्लिप, और 0 को 1 किया दैट इज द सेकंड फ्लिप, तो हमने 2 बिट चेंज किया एंड दैट्स व्हाई हियर एक्चुअल कॉस्ट विल बी 2। तो किसी भी बाइनरी काउंटर के लिए एक्चुअल कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली चेक करना पड़ेगा कि उस बाइनरी काउंटर को इंक्रीमेंट कराते वक्त आपने कितने नंबर ऑफ बिट्स ऐसे जिनको फ्लिप किए, तो जितने बिट्स आपके फ्लिप होंगे दैट नंबर ऑफ फ्लिप बिट्स विल गिव जस्ट द एक्चुअल कॉस्ट, एंड दैट्स व्हाई हियर फॉर 2 इट विल बी 010, 2 बिट्स हमारे चेंज हुए इसलिए एक्चुअल कॉस्ट विल बी 2, एंड फॉर 3 इट विल बी 011, तो 010 और 011 में अगर आप देखोगे तो 0 को हमने 1 किया, बाकी सारे बिट्स एज इट इज है, तो ओनली एक ही बिट चेंज हुआ, दैट्स व्हाई एक्चुअल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 1। तो दिस इज अबाउट द हाउ टू कंप्यूट द एक्चुअल कॉस्ट फॉर एनी बाइनरी काउंटर। आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। तो DI स्टेट के लिए हम पोटेंशियल फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए पोटेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है फाई ऑफ DI से। अब फाई ऑफ DI कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फाई ऑफ DI कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें चेक करना है कि करंटली आपको जो भी बाइनरी काउंटर दिया हुआ है उस बाइनरी काउंटर में ऐसे कितने बिट्स है जिनका नंबर 1 है। तो आप देख सकते हैं पहला काउंटर क्या है 000, तो 000 में कितने बिट्स ऐसे है जिनकी वैल्यू 1 है, नथिंग, कोई भी बिट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट काउंटर है आपका 001, तो 001 में ऐसे कितने बिट्स है जिनका नंबर 1 है, तो 1 कितने आपके यहाँ पे ओनली 1, एंड दैट्स वाई फाई ऑफ DI अगर आप देखोगे तो दैट विल बी 1। देन 2 का रिप्रेजेंटेशन जो होगा 010, यहाँ अगर आप देखोगे तो कितने बिट्स ऐसे है जिनकी वैल्यू 1 है, दैट इज 1, तो 1 वाला बिट मेरे पास एक ही है, एंड दैट्स वाई हियर फाई ऑफ DI विल बी इक्वल टू 1। 3 का रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा दैट विल बी 011, और 011 को अगर हम केयरफुली देखेंगे तो 011 में कितने बिट्स ऐसे जिनकी वैल्यू 1 है, दैट इज 2, एंड दैट्स वाई फाई ऑफ DI विल बी इक्वल टू 2। तो दिस इज अबाउट द फाई ऑफ DI। अब फाई ऑफ DI माइनस 1 क्या इंडिकेट करेगा, तो फाई ऑफ DI माइनस 1 इंडिकेट करेगा इसके प्रीवियस इटरेशन का पोटेंशियल फंक्शन। तो जैसे करंटली अगर हम यहाँ पे हैं तो इसका प्रीवियस इटरेशन में DI कितना था 0, तो दैट विल बिकम DI माइनस 1, तो इसके लिए DI माइनस 1 हो जाएगा ये। अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो इसके लिए DI माइनस 1 होगा ये, यानी उसके प्रीवियस वाले स्टेट का पोटेंशियल फंक्शन विल बी इक्वल टू DI माइनस 1, एंड दैट्स वाई अगर आप देखोगे तो दिस वन विल बिकम DI माइनस 1 ओवर हियर, दिस वन विल बिकम DI माइनस 1 ओवर हियर, तो दिस इज व्हाट DI माइनस ऑफ 1। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल चेंज। तो पोटेंशियल चेंज क्या रहेगा, तो पोटेंशियल चेंज रहेगा डिफरेंस इन बिटवीन DI एंड DI माइनस 1। तो फाई ऑफ DI और फाई ऑफ DI माइनस 1 ये दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और अभी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 0 माइनस 0 विल बी ओवर हियर 0, 1 minus 0 will be here 1, 1 minus 1 will be here 0, and 2 minus 1 that will be 1, and that's why अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा 0 1 0 1। नाउ वी हैव टू गो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट। तो अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इससे पहले हमने स्टडी किया है किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए अगर हमें अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो अमोर्टाइज कॉस्ट विल बी कंप्यूटेड एज द एडिशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे कि इस पर्टिकुलर रो के लिए अगर मुझे अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो दैट अमोर्टाइज कॉस्ट विल बी इक्वल टू उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए या उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितना और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना है यहाँ पे 0 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0, देयरफॉर 0 प्लस 0 विल बी द अमोर्टाइज कॉस्ट। फिर नेक्स्ट इसमें 1 के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 के लिए आपको एक्चुअल कॉस्ट देखना पड़ेगा हाउ मच इट इज 1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1, तो देयरफॉर 1 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट इसके लिए अगर जाते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट कितना है आपका 2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0, देयरफॉर 2 प्लस 0 विल बी इक्वल्स टू 2। तो सिंपली आपको याद रखना है कि अमोर्टाइज कॉस्ट जब आपको कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल कॉस्ट वाला जो कॉलम है और पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो कॉलम है उनका रिस्पेक्टिव एडिशन हमें परफॉर्म करना है। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, 2 plus 0 2 and 1 plus 1 2। तो दिस इज अबाउट हाउ टू कंप्यूट अमोर्टाइज कॉस्ट। अभी ये तो हमने देख लिया है कि अगर मेरा काउंटर 0 से लेके 3 तक के बढ़ रहा है तो किस तरह से होगा, और यही सिनेरियो ओवरऑल सिनेरियो अगर हमको स्टडी करना है तो हियर वी हैव ओवरऑल सिनेरियो
whenever our counter value may get increase from 0 to 7। तो अभी हमने 3 बिट काउंटर को 0 से लेके 7 तक के बढ़ाया है, तो 3 बिट काउंटर जो रहेगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन 3 बिट का रहेगा, और ये वैल्यू जो रहेगी हमेशा 000 से लेके 111 तक के बढ़ेगी। अब इस पूरी ऑपरेशन के लिए अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई ऑफ डी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई ऑफ डी आई माइनस वन, पोटेंशियल डिफरेंस और एमोर्टाइज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने अभी स्टडी किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे अर्लियर स्लाइड में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करते हुए फिर से सारे कंप्यूटेशंस को आपको रिकम्प्यूट करके देखना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली पॉज द वीडियो, और वीडियो पॉज करके एक बार फिर से चेक कर लो कि हमने सारे वैल्यूज सही तरीके से कैलकुलेट किए या नहीं। तो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करते वक्त कॉन्सेप्ट क्या था कि एक्चुअल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट क्लियर था, कितने नंबर ऑफ बिट्स है जो आपके फ्लिप हो रहे हैं। तो 000 में इनिशियलाइज तो 0 रहेगा। अब 000 से 001 में हमारा एक बिट फ्लिप हुआ है, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज 1। देन 1 और 2 में अगर जाएंगे तो 1 को फ्लिप किया 0 और 0 को फ्लिप किया 1, 2 बिट्स आपके चेंज हुए, देयरफॉर दिस विल बी 2। तो सिमिलरली हमने ये पूरा कॉलम कैलकुलेट किया है। तो एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इसका प्रीवियस स्टेट में और करंट स्टेट में कितने बिट्स आपके डिफर हो रहे हैं, तो जितने बिट्स आपके फ्लिप हुए होंगे दैट पर्टिकुलर काउंट विल गिव जस्ट द एक्चुअल कॉस्ट। बाद में फाई ऑफ डी आई, तो फाई ऑफ डी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए आपको चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, जितने नंबर ऑफ वन रहेंगे दैट विल बी द फाई ऑफ डी आई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे इसमें कितने नंबर ऑफ वन है, तो वन काउंटर की अगर वैल्यू है, इसको अगर बाइनरी में लिखेंगे तो इट विल बी 001। तो 001 में टोटल नंबर ऑफ वन कितने हैं, सिंगल, एंड दैट्स वाई फाई ऑफ डी आई कितना रहेगा 1। अभी हम यहाँ के लिए देख लेते हैं 6 के लिए, 6 का रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा 110, और 110 में टोटल वंस कितने हैं 2। तो टोटल वंस अगर 2 है तो उसके लिए फाई ऑफ डी आई क्या रहेगा 2। जबकि 7 के लिए अगर जाते हैं तो 7 का रिप्रेजेंटेशन रहेगा 111, और 111 में काउंट ऑफ वन कितना है 3, दैट्स वाई फाई ऑफ डी आई कितना रहेगा 3। अब फाई ऑफ डी आई माइनस वन क्या, तो फाई ऑफ डी आई माइनस वन यानी एक स्टेट पहले। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर मुझे फाई ऑफ डी आई माइनस वन निकालना है तो हमारा ये वाला डी आई 0 जो रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। क्यों, इसके प्रीवियस वाले इटरेशन की जो स्टेट रहेगी वो हमको लिखना है। तो देयरफॉर दिस 0 शुड बी कॉपीड ओवर हियर, this 1 should be copied over here, this 1 should be copied over here, this 2 should be copied over here, this 1 should be copied over here। तो सिमिलर मैकेनिज्म हमें अप्लाई करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फाई ऑफ डी आई माइनस फाई ऑफ डी आई माइनस वन, यानी ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों का डिफरेंस। तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 इट विल माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0 एंड 3 माइनस 2 1। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। और अभी हम कंप्यूट करेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट। तो अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका था क्या था, तो अमोर्टाइज कॉस्ट वाज कंप्यूटेड फॉर ith ऑपरेशन एज what is the actual cost required for that particular operation plus what is the potential difference। तो जैसे इसके लिए अगर कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर रो के लिए, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना है मेरा 0 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0, दोनों का सम कितना हो जाएगा 0, देयरफॉर अमोर्टाइज कॉस्ट विल बी 0। हम रैंडमली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट कितना है 3 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है -1, तो 3 माइनस ऑफ 1 इट विल बी इक्वल्स टू 2। तो आप किसी भी रो के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, एक्चुअल कॉस्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस। आप यहाँ पे चेक कर लो, एक्चुअल कॉस्ट 2 और potential difference 0, तो 2 plus 0 will be equals to 2। and now what we have to do, we have to go for computation of total amortized cost। तो total amortized cost यानी क्या, तो total amortized cost का मतलब होता है जितने भी आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए वो हर ऑपरेशन के लिए आपको पहले amortized cost कैलकुलेट करना है, और हर ऑपरेशन का अमोर्टाइज कॉस्ट जो भी होगा वो सबका सम करना है, दैट विल गिव जस्ट द टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे टोटल ऑपरेशंस कितने परफॉर्म किए 7, तो हर ऑपरेशन के लिए मुझे अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना है। लगभग सभी के लिए 2 2 2 2 मिला, और सबका एडिशन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट कितना मिल गया 14। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to do for generalized analysis for this amortized analysis, the total amortized cost of 7 operation is 14। therefore 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 will be equals to 2 into 7, और 7 यानी क्या था कितने बार हमने इंक्रीमेंट किए,
So that increment was n times, and that's why for total n operations हम amortized cost को लिख सकते हैं twice n, और asymptotically अगर इसको लिखना है तो twice n में n की highest degree क्या है 1, and that's why asymptotically we can say that total amortized cost for n operations for incrementing binary numbers will be equals to big O of n. This is all about how to compute amortized cost for incrementing binary numbers by using potential method. Thank you.